सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज कोरोना की बात होगी कोरोना विजेताओं के साथ। दोस्तों, आज जहां कोरोना पैंडेमिक से हम सभी गुजर रहे हैं, जहां हर कोई कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे कोरोना विजेताओं की कहानी जिनको सुनकर आपको हौसला मिलेगा, जज्बा मिलेगा और साथ ही आप इस जंग से अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। मैं आपका सभी से परिचय करवा दूं। मैं मोनिका भट्ट, मेरे साथ मेरी को होस्ट है मिस प्रशांति गौड़ा। मिस प्रशांति गौड़ा एजुकेटर हैं, साथ ही वो प्रिंसिपल हैं और टीचर्स की ट्रेनर भी हैं। मिस प्रशांति गौड़ा विनर्स क्रिएटर में साउथ जोन की चीफ प्रेसिडेंट की पोस्ट पर काम कर रही हैं। मिस प्रशांति मेरे साथ को होस्ट होंगी। हमारे स्टूडियो में आज बहुत ही खास मेहमान हैं जो कि कोरोना फाइटर हैं, जिन्होंने हाल ही में कोरोना से जंग जीती है। हमारी जो खास मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर निधि सिंह टाक। डॉक्टर निधि सिंह टाक एक रिनाउंड एजुकेशनिस्ट और एजुप्रेन्योर है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे संस्थानों के साथ काम किया है। वो लिटिल यूनिवर्स की प्री स्कूल की एक श्रृंखला है जिसमें वो फाउंडर और डायरेक्टर हैं। वर्तमान में वे पेटल नॉलेज पार्क की फाउंडर और डायरेक्टर हैं। साथ ही नारी शक्ति को प्रणाम और ब्रजभूमि फाउंडेशन की वो प्रेसिडेंट है। उन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जैसे गुरु उपनिषद सम्मान जो कि CWSIR की तरफ से दिया गया है। विनर्स क्रिएटर में निधि जी को सेंट्रल जोन में चीफ प्रेसिडेंट का पद दिया गया है। हाल ही में उन्होंने कोरोना से जंग जीती है और आज उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। निधि मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे कुछ एक्सपर्ट भी हैं जिनका परिचय आपको प्रशांति मैम करवाएंगी। Thank you so much, Ms. Monica, for the introduction. Winners never quit and quitters are never going to win. So this is a famous quote. Let me start. So moving further, I would now like to introduce our honorable founder, CEO of Winners Creator, that is Mr. Yogi Yoginder Ji. Basically, he's a trainer and started competition classes, coaching classes, which was a huge success. As he's very ambitious and wanted to do something more for the welfare of humanity, as a result of that, today we have Winners Creators Organization. We welcome you, sir, for the show. So moving forward, we have Ms. Gulnaz Parveen as a program head. Ms. Gulnaz is a founder and principal of Harsh International School. She's also global talk speaker, educationist, and also skill development trainer. Welcome you, ma'am. Welcome you for the show. So next, moving further, whenever we are in a talk show, experts' opinion matters a lot. So here we have our three experts on our show today. So first of all, I would like to introduce our first expert, that is Miss Anita Balan. Miss Anita Balan is an established corporate trainer, spoken English trainer, and also motivational speaker too. She's having a huge experience of 17 years in the field of education. She is a national head women's welfare at Winners Creator. We welcome you for the show, Miss Anita ma'am. Welcome you. So moving on, we have one more expert on our show, that is Miss Varsha Nankani. Miss Varsha is also having a 17 years of experience. She's an educationist and also lecturer. She's a national head public relations at Winners Creators and a member of Charles Walter Society for Innovation and Research. Welcome you, Ms. Varsha. Welcome for the show. Proceeding further, we have another expert at our show today, that is Ms. Shweta Jha. Ms. Shweta Jha is a rehabilitation psychologist, NLP, and a mind workout coach, and also a special educator. She's a result-oriented profession with 14 years of experience in a teaching and also in a counseling field. Welcome you, Ms. Shweta. Welcome you for the show. I also welcome you all the viewers on the Facebook. Welcome. Thank you. थैंक यू मिस प्रशांति। दोस्तों, कहते हैं ना कि हम महक की तरह गुलों से उड़ते हैं, हम धुओं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, और ये कैंचियां हमें उड़ने से क्या खाक रोकेंगी,
हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। कुछ ऐसे ही हौसले की कहानी, कुछ ऐसे ही जज्बे की कहानी हमारी आज की खास मेहमान डॉक्टर निधि मैम की है। निधि मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो कोरोना की जर्नी रही है वो कैसी थी? आपको कैसे पता चला कि आपको कोविड हुआ है, और जब आपको पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था और आपने क्या किया? प्लीज हमें बताइए। Yeah, thank you, Monica. First of all, I would like to thanks to the Almighty God for giving me strength and blessings to overcome this challenging phase of Corona. And special thanks to my family members, my friends and relatives for their regular support. And very, very special thanks to the CEO of Winners Creator Group, Mr. Yogi Yogendra ji, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं, और उन्हीं का इनिशिएटिव है ये. एंड दिस इनिशिएटिव इज रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द ऑडियंस. सो हेलो lovely ladies over here, and to all my hello to my lovely audience also. So let me start with my story. स्टोरी ऐसी है कि इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है. जो कोरोना से अभी जो सिनेरियो चल रहा है, लोग कोरोना के नाम से ही घबराते हैं, बट लेट मी टेल यू फ्रेंकली, कोरोना से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. और ऐसी स्टोरीज बहुत सारी हैं जो आने वाले टाइम में आपके सामने आती रहेंगी, जिससे हम सबका हौसला बढ़ेगा और इस कोरोना को हम परास्त करने में विजयी होंगे. तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तकरीबन 20 दिन पहले, जब थोड़ा सा वेदर रेनी वेदर था. इट वाज अ प्लेजेंट वेदर, एंड जब बारिश वगैरह बंद हो गई तो वी हैव अ वेरी गुड ओपन टेरेस. तो आई वाज सिटिंग विद माय किड्स देयर, बच्चों के साथ गपशप मार रहे थे, एंड थोड़ा लेट नाइट हो गया था. मेरे हस्बैंड नीचे आ गए थे, बट आई वाज स्टिल एंजॉयिंग द वेदर विद माय चिल्ड्रन. तो मैं भी थोड़ा लेट हो गई थी, बट हाँ नीचे आई. एंड देन नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे, मुझे सिम्टम्स होने लगे. लाइक आई स्टार्टेड फीलिंग फेवरिश एंड बॉडी एक, एंड गले में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा. तो मुझे यही लगा था कि वायरल हो सकता है. कल थोड़ा ठंडे मौसम में बैठ गए तो मे बी उस वजह से ये हो सकता है. तो आई टुक द इनिशियल मेडिकेशन, जो भी हमको पता ही है, लाइक वी हैव टू व्हाट पैरासिटामोल वी हैव टू टेक, एंड वी हैव टू टेक माइल्ड एंटीबायोटिक. तो वो मैंने लिया. बट द सेम डे मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे भी कोरोना हो सकता है, या मैंने दूर दूर तक सोचा ही नहीं था कि कोरोना भी आ सकता है. हालांकि उस टाइम तक कुछ पता नहीं था. सो मैं और मेरे हस्बैंड सेम ही रूम में थे. मैंने अपने आप को सेम डे आइसोलेट नहीं किया. सो प्लीज नोट हियर, दिस वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, जिस भी दिन आपको फेवरिश फील हो या ऐसा कुछ भी सिम्टम हो, immediately you isolate the same day, same night. मैं हस्बैंड के साथ ही सेम बेडरूम में थी, एंड द सेम प्रॉब्लम उनको नेक्स्ट डे होने लग गई. सो दिस वाज रियली पेनफुल फॉर मी कि मेरी वजह से उनको भी ये प्रॉब्लम हुई. एंड द वेरी नेक्स्ट डे वी वेंट टू द डॉक्टर फॉर कंसल्टेशन, एंड एज यूजुअल डॉक्टर ने बोला यू हैव टू गो फॉर अ कोरोना टेस्ट. एंड जो मेडिकेशन था उन्होंने वो कोरोना का ही लिखा था, जो कोविड मेडिकेशन है. एंड फिर हम लोगों ने जब टेस्ट करवाया, मॉर्निंग में टेस्ट करवाया, एंड अराउंड 12 to 16 आवर्स के अंदर वी गेट द रिपोर्ट. तो रात को रिपोर्ट आई, दिन में टेस्ट हुआ. सो आई वाज स्टिल कॉन्फिडेंट कि मुझे कोरोना तो नहीं होगा, बस ठीक है ऐसे ही कुछ होगा तो नेगेटिव रिपोर्ट ही आएगी. आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट, बट अंदर से एक छोटा सा एक डर सा था मुझे मेरे हस्बैंड के लिए. ऑब्वियसली मेरे लिए भी था, अगर मेरा निकला तो उनका निकलेगा ही पॉजिटिव. तो अनफॉर्चुनेटली जब रिपोर्ट आई तो दैट वाज पॉजिटिव. कि पॉजिटिव देख के फर्स्ट टाइम नेगेटिव फीलिंग आई, यू नो, कि रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, कोरोना पॉजिटिव. एंड हस्बैंड की भी आ गई है पॉजिटिव रिपोर्ट. तो मुझे उनके लिए, मुझसे ज्यादा उनके लिए फील इसलिए हुआ बिकॉज एक तो मैंने जो फर्स्ट पॉइंट है वो अपने आप को आइसोलेट नहीं किया था, वो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया. सो दिस इज माय फर्स्ट रिक्वेस्ट टू ऑल द ऑडियंस कि सेम डे आइसोलेट करें. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके बाद उनके काफी सारे मेडिकेशंस चलते हैं ऑलरेडी. सो दैट वाज अ ग्रेट, लाइक मेरे लिए एक चिंता का विषय था कि उनका ये सब मेडिकेशन के साथ साथ एक और नए मेडिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे.
So that was like again and again haunting me. But still जो fact था, we have to accept it, and वो accept किया. But बोलते हैं ना कि एक चैलेंज आता है तो पता नहीं पीछे पीछे कुछ ना कुछ अपने साथ में चैलेंजेस लेकर आते हैं. तो मेरे साथ जो चैलेंजेस आए वो एक था कि मेरा जो परमानेंट हम लोग का डोमेस्टिक हेल्पर है, ही वाज जस्ट लाइक अ सन टू मी. तो उसको भी गांव में कुछ ऐसा अर्जेंट काम आ गया कि उसको जाना पड़ा. ही वाज द टोटल लाइक हेल्पिंग हैंड फॉर मी. पूरे घर के लिए वही हेल्पिंग हैंड था. तो वो चले गए एंड लास्ट मोमेंट पे आपको कोई इतना इजीली कोरोना टाइम्स में यू डोंट गेट एनी मेड और कोई भी बाहर से बुलाना इज नॉट सेफ एट ऑल. तो वो एक दिक्कत थी. एंड वन मोर चैलेंज विच केम, माय डॉटर इन लॉ बरखा, शी इज ऑन अ फैमिली वे एंड शी वाज हैविंग सम प्रॉब्लम द सेम डे. इनिशियल 2-3 दिन में उसको कुछ प्रॉब्लम्स होने लगे. तो वो भी डॉक्टर के पास गई. नॉट रिलेटेड टू कोविड, इट्स रिलेटेड टू हर प्रेगनेंसी. तो डॉक्टर ने उसको इमीडिएटली बोला यू हैव टू टेक अ बेड रेस्ट नाउ, आपको बेड रेस्ट पे जाना है. तो वो एक जो उम्मीद थी कि वो ठीक है किचन में थोड़ा बहुत कर लेगी, वो भी उसको भी बेड रेस्ट बताया. तो फर्स्ट फ्लोर पे उसको पूरा अलग से कर दिया एंड शी वाज इन हर रूम एंड ऑन बेड रेस्ट. सो एंड हम दोनों जो थे, मैं और मेरे हस्बैंड, एक रूम में अलग से बंद थे. और मुझे तो ऐसा लग रहा था बिकॉज मेरा जो नेचर है, आई एम रियली हाइपर एक्टिव, आई एम लाइक अ बटरफ्लाई. मैं हमेशा किसी ना किसी चीज में अपने को ऑक्यूपाइड रखती हूँ ऑल द टाइम, या तो घर में या ऑफिस में या सोशल कामों में, सभी में ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ. तो पूरे टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है. एंड थोड़ा सा मेरे अंदर मैं बोलूंगी कि प्रॉब्लम तो नहीं है, इट्स अ गुड थिंग, बट उसके लिए यू हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स. थोड़ा आई वांट एवरीथिंग इन अ परफेक्ट मैनर, लाइक परफेक्शन चाहिए मुझे हर काम में. तो वो परफेक्शन वाली आदत मेरी उस टाइम में मेरे लिए इट वाज रियली वेरी पेनफुल बिकॉज मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, घर पूरा उलट पुलट हो रहा था. बट ठीक है, वो भी मैंने एक्सेप्ट किया पेशेंस के साथ. मैंने सोचा अब इसका कोई इलाज नहीं है, सब कुछ छोड़ के यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ. आप खुद ठीक रहे तो आप अपने हस्बैंड की भी केयर कर सकते हो एंड पूरा घर को भी आप अंदर से ही, रूम से ही कैसे भी मैनेज कर सकते हो. एंड माय सन पार्थ, उसने पूरा घर की कमान संभाली. एंड जैसे जैसे उसको गाइड किया, बाहर का तो वो कर ही रहा था बट घर का भी, दो इज नॉट इन एनी प्रैक्टिस बट स्टिल उसने जो भी बेस्ट हो सकता था वो हम लोगों के लिए किया. एंड रियली आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई किड्स एंड स्पेशली माई डॉटर ऑल्सो. हालांकि वो दिल्ली में है बट रेगुलरली वो कॉल कर रही थी, मैं आ जाती हूँ. बट आई टोल्ड कि एक्सपोजर इज नॉट गुड, सो यू हैव टू स्टे वेयर यू आर. यू कांट, यू शुड नॉट हैव एनी एक्सपोजर कि आप दिल्ली से पूरा ट्रैवल करके आओ. वी विल मैनेज, जैसे भी होगा. वी आर मैनेजिंग एंड वी विल, गॉड इज विद अस एंड ऑल वेल विशर्स आर देयर. तो ये सारा मेरा इनिशियल डेज का पूरा स्टोरी था. उसके बाद जो सिटी स्कैन वगैरह रिपोर्ट्स हमने अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर हमने करवाए, ब्लड टेस्ट का करवाया. तो इस यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करूंगी कि मुझे जब फर्स्ट सिम्टम्स आए उससे मैंने आई थिंक 20 to 25 डेज पहले फर्स्ट डोज वैक्सीन का ले लिया था. तो इट वॉज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर अस, फॉर मी एंड फॉर माई हस्बैंड. तो उसमें जब हमारा सिटी स्कैन रिपोर्ट आया तो द इन्फेक्शन वॉज माइल्ड. So the whole credit goes to the first dose of this thing, vaccination. तो उसमें मेरा काफी माइल्ड, हम दोनों का ही माइल्ड था जो इन्फेक्शन था. So that was very helpful. And the medication जैसे स्टार्ट हुआ हम लोग मेडिकेशन लेते गए. And the rest I will share afterwards. So thank you, Monica. थैंक यू सो मच मैम. आप अभी कोविड से जीत कर आई हैं, लेकिन आपके चेहरे का जो ग्लो है, मैं जानना चाहूंगी इसके पीछे क्या राज है. बहुत ज्यादा ग्लो कर रही हैं आप. Yeah, thank you so much. इस ग्लो के पीछे भी कोरोना के ही मैं बोलूंगी. बिकॉज ऑफ कोरोना इतना स्टीम लिया, इतना मतलब दिन में 2 या 3 बार स्टीम लिया, तो उससे मेरे पूरे जो स्किन के डेड पोर्स थे सब खुल गए एंड पूरा ग्लो आ गया. एंड इवन वन मोर बेनिफिट मुझे जो मिला, जो हम लोग इतना मतलब कोशिश करते हैं हम लोग वेट कम करने के लिए,
मेरा वेट भी 3-4 किलो कम हो गया, सो इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। चलिए मैम, तो हम इसको भी पॉजिटिवली लेते हैं। खैर ये तो एक मजाक था, लेकिन मैम आजकल जो कोविड का माहौल है, जो पेंडेमिक चल रहा है, उसमें लोग कोरोना को लेकर इतना ज्यादा डर रहे हैं। उनके बीच में एक कोरोना का जो भय है, तो वो भय उनके बीच में उस बीमारी से कहीं ज्यादा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आपको ये पता लगा कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो क्या आपको डर लगा था? और अगर आपको डर लगा था, तो आपने उसका सामना कैसे किया? इज वेरी गुड क्वेश्चन मोनिका, क्योंकि वाकई में जब कोरोना का आपको मतलब रिपोर्ट आने वाली होती है तो आपके मन में एक डर होता है, और वो जब रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वो डर आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली डर बढ़ भी जाता है मोस्टली लोगों के लिए, मैं बोलूंगी, बिकॉज इतने सारे हम नॉलेज के साथ ओवरलोडेड हो गए हैं कि वो नॉलेज ही हमको डराती है। ज्यादा नॉलेज हमको सोशल मीडिया से नॉलेज हो गया, हमको हमारे रिलेटिव से नॉलेज होता है, या व्हाट्सएप पे नॉलेज होता है, या कहीं ना कहीं से वी आर ऑल्सो सर्चिंग फॉर नॉलेज। तो इतना ज्यादा नॉलेज हो गया उसके बारे में, एंड मोस्टली मैंने देखा है कि पॉजिटिव नॉलेज कम है एंड नेगेटिव ज्यादा है। पॉजिटिव कम इसलिए मैं बोलूंगी कि मोस्टली सारे जो होम मेडिसिन होते हैं या होम केयरिंग रेमेडीज होती हैं वो शेयर होते हैं, या मतलब न्यूज में भी ऐसा आता है कितने कैजुअलिटीज हुए हैं। तो ये सारी जो चीजें होती है, ये एक मेंटल हेल्थ के लिए जो है वो काफी नेगेटिव होती है इनिशियली, और लोगों के दिमाग में मतलब वो एक सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है कि नहीं कोरोना है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत बहुत कुछ हो सकता है। जिसको भी कोरोना है उस मतलब उनसे मतलब उनको ठीक है सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। बट मैं यहाँ पर बोलूंगी एक आइसोलेशन जब में आदमी जाता है, जब कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो उनको नेगेटिव होने की या मेंटली नेगेटिव होने की या एक डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिकॉज सालों से हम देखते हैं, जब हमने आई थिंक पैदा भी नहीं होंगे सालों पहले भी ऐसे ही पेंडेमिक्स आए थे और सबके सॉल्यूशंस निकले हैं। एंड आज जो ये कोरोना जो पेंडेमिक है इसके भी सॉल्यूशंस आ गए हैं, वी इट्स टोटली क्योरेबल। ऐसा नहीं है कि क्योरेबल नहीं है, आराम से क्योर हो रहे हैं। वी शुड सी द पॉजिटिव न्यूज बेसिकली कि कितने लोग आई थिंक इंडिया में तो रिकवरी रेट जो है पूरे वर्ल्ड में अगर हम कंपेयर करें तो रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है। तो वी शुड रियली फील प्राउड ऑफ इट कि इंडियंस की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। एंड क्यों अच्छी है वो भी हम जानते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल हमारे जो एंशियंट टाइम से जो कल्चर चले आ रहे हैं, द योगा एंड ऑल नेचुरल इम्यूनिटी के लिए हम जो भी घर में करते हैं, तो उस वजह से हमारा इम्यूनिटी ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है। और इसके लिए मैं ये बोलूंगी, एक जो आप बोल रहे हो ना इनिशियली आपको डरने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि अब इसका प्रॉपर मेडिकेशन आ गया है, कंप्लीट आपको कोर्स होता है। बट आप ये है कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, एंड डोंट वेट कि आप 3 दिन में ठीक हो जाएंगे या वायरल है। जस्ट डोंट टेक इट लाइटली। जो इनिशियली लोगों ने लिया, इस वजह से थोड़ी बहुत कैजुअलिटीज हुई है बिकॉज दे टुक इट लाइटली। बट नाउ इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं ले रहे हैं, और इनिशियल डेज में ही हम जाके अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। दिस इज द फैक्ट कि हमको इसमें बिल्कुल स्कैरी होने की जरूरत नहीं है। क्योरेबल डिजीज है, सिंपल वायरस है, फ्लू है, जो कि आपके प्रॉपर मेडिकेशन से ठीक हो जाता है। और जो 14 डेज का क्वारंटीन पीरियड है वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जरूर। सो थैंक यू सो मच मोनिका। Thank you so much, Nidhi ma'am, for sharing the initial experience of the COVID and also well explained that how to overcome the negativity. Thank you so much. Thank you. So nowadays, summer vacations has become a COVID vacation. Stay home, stay safe has become a mantra, and using gadgets has become hobby. So now, moving forward, I would like to ask a question to our experts. That is Ms. Anita ma'am. So Anita ma'am, in today's scenario, people are very scared and there is a lot of negativity going on about this COVID. So what do you think? What is your opinion regarding this? Okay. Shanti, for this question.
First of all, a very good evening to all my people over here and even the viewers. And I would like to congratulate our Corona fighter, Dr. Nidhi Singh, for winning a battle against Corona. It is now important to understand why people are feeling scared and negative about Corona. Well, to my mind, one of the important reasons could be the forced change of lifestyle, which everyone has to go through this pandemic time. Like positivity is the need of the hour, we all know that. So let me now start with a quote, a simple quote by Amit Ray. He has beautifully said, the world needs huge positive energy to fight against the negative forces. Go to the center of your inner being and generate that positive energy for the welfare of the humanity. I would like to emphasize here that if one follows basic hygiene, then there is nothing much to fear about the pandemic. And it can be easily conquered. Basic precautions like wearing a mask, using sanitizers to keep the hands clean, checking the temperature, and social distancing, etc., they serve as the best defense to fight this pandemic. Apart from this, some other necessary protocols to be followed are: you need to disinfect your house on a daily basis. You need to make sure that cleaning of the high-touch surfaces are done every day, like switchboards, your doorknobs, the furniture, etc. You also need to ensure visitors who come to your place are properly masked. Remember the popular saying, Jaan hai to jahan hai, which is very apt in today's time. One has to conquer the fear in his or her mind by listening to positive thoughts and interacting with positive people, which will help them feel better to a great extent. अपना mind को positive रखिए. We should learn to live a stress-free life and practice living in the moment. ये moment में खुश रहो. जितना आप negative सोचोगे, उतना आपका stress levels बढ़ेंगे. There are many emotions which we all feel as a result of this lockdown or quarantine, and it is quite natural given the struggles each one of us are going through right now. It's therefore important to have an appropriate mindset to deal with the current situation. Practicing meditation and yoga daily, this will help you go a long way to overcome such negative emotions. As it's rightly said, this too shall pass. Remember one thing for sure, nothing is stationary. Whether good or bad, everything has to come to an end with the passage of time. इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है. अगर रात है तो दिन भी आएगा. So let's all understand, जो वक्त अभी चल रहा है वो भी गुजर जाएगा. For most people, the illness caused by this coronavirus is generally mild, and the flu-like symptoms of fever and cough, they don't last long. We unnecessarily panic. Why to panic? I would also like to say that the media has got an important role to play. It must dispense accurate information without being sensational. And it must avoid exploiting people's fears. People should limit their media exposure. They should exercise caution against reading about the outbreak obsessively and instead look to getting needed information and moving on. The best thing is to find some trusted sources, the outlets which are providing accurate information, and be cautious about social media. One need not have to be constantly seeking information on the virus. TV and newspapers देखिए, लेकिन कम देखिए, limited देखिए. जितना knowledge जरूरी है, उतना देखिए. But don't get influenced by that. People should strive for emotional balance.
Maintain routines. Find someone whom you can confide, who can help you come out of your unknown fears and concerns. अपना friends या relatives से बात कीजिए, उससे मन हल्का होता है, एक moral support मिलता है, and आप comfortable feel करेंगे. Engage yourselves, in some activity, whatever you like. That would be a good distraction from getting unwanted thoughts. As it is said, an idle mind is a devil's workshop. Lastly, I would like to say, during this difficult time, one must maintain an optimistic mindset and ensure that the family follows the self-care protocol prescribed by all doctors and the medias, and to practice Sahaj Yoga meditation. I believe that these simple techniques will go a long way in achieving a state of thoughtfulness, maintaining a calm, peaceful mind, and instill immunity to come out as a fighter, which is the need of the hour. This is what I have to say. Thank you so much, Prashanti. थैंक यू सो मच मैम. आपने बहुत अच्छी बात कही कि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, हमें हौसला रखना चाहिए. और कहते भी है ना कि ना घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो वो जुगनू भेज देता है. तो यदि हम हौसला रखेंगे तो ईश्वर भी हमारे साथ होगा और निश्चित रूप से हम इस समस्या से बाहर निकल पाएंगे. निधि मैम, मैं आपकी तरफ रुख करती हूँ. जैसे कि हमने बात की, मैम ने भी कहा कि कोरोना का डर है, पॉजिटिविटी रखना चाहिए, बार बार ये बात हो रही है, लेकिन फिर भी इस कोविड का जो तनाव है, लोग उससे बाहर बिल्कुल नहीं निकल पा रहे हैं. मानसिक तनाव इतना ज्यादा है कि कई बार बीमारी के बाद भी बीमारी ठीक भी हो जाए, लेकिन इंसान उस तनाव से बाहर नहीं निकल पाता है. तो क्या आपको भी मानसिक तनाव कोविड का हुआ था? और मानसिक तनाव ना हो इसके लिए आपने क्या क्या टिप्स अपनाई, ये हमारे ऑडियंस को प्लीज बताइए मैम. या डेफिनेटली मोनिका, मानसिक तनाव जो है वो एक नेचुरल सी चीज है, मैं बोलूंगी. अगर वो होता भी है, बिकॉज अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अगर मैं बोलूं तो हर एक फैमिली को देयर इज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल स्ट्रेस सबसे पहला जो पॉइंट होता है मानसिक तनाव के लिए, वो आज के टाइम में फाइनेंशियल स्ट्रेस है. बिकॉज ऑफ दिस न्यू नॉर्मल या जो लॉकडाउन है, या जिस पूरे प्रोफेशंस इतने इफेक्ट हुए हैं, बिजनेसेस इतने इफेक्ट हुए हैं, लोग इतने इफेक्ट हुए हैं, तो ऑब्वियस, इट्स क्वाइट ऑब्वियस एंड नेचुरल कि मेंटल स्ट्रेस होगा उनको, बिकॉज फाइनेंशियली ऑल्सो दे आर स्ट्रेस्ड. तो उसका एक स्ट्रेस होता है. बट ये स्ट्रेस को आप, ये दिस इज नॉट अ परमानेंट स्ट्रेस, लेट मी टेल यू, दिस इज अ टेम्परेरी स्ट्रेस. तो आप इसको एक स्ट्रेस की तरह ना लें. मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि डेफिनेटली अभी ये स्ट्रेस लेवल है लोगों में, बट रिक्वेस्ट मेरा यही है कि आप इसको स्ट्रेस लेवल को इतना मत बढ़ाइए या इसको बहुत मतलब नेग्लिजिबल ही कर दिए, बिकॉज ये परमानेंट नहीं है. दिस फेज इज नॉट परमानेंट फेज. ये चले जाएगा एंड वही हमारे अच्छे दिन वापस आएंगे. एंड ये जो दिन है, ये जो हमारे लॉकडाउन डेज हैं, या जो लोग बाग इसको स्ट्रेसफुल डेज मान रहे हैं, तो प्लीज इनको स्ट्रेसफुल डेज मानना बंद कर दें. जितना जल्दी आप इनको मानना बंद कर देंगे, बिकॉज लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जितना ज्यादा स्ट्रेस, वन फॉर्मूला इज देयर मेरे हिसाब से, मोर स्ट्रेस इज इक्वल टू लेस इम्यूनिटी. अगर इन दोनों आपने अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस रखा तो आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो कम होगा. एंड अभी आपको इम्यूनिटी अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि इस फेज को या इस कोरोना आपके ऊपर अटैक ना कर पाए. तो अपने आप को मेंटली आपको नेगेटिव होने से बचाना है. और आप कैसे बच सकते हैं इसके लिए मैं बताऊं, अभी आपके लिए बहुत, मैं तो बोलूंगी कि ये वाकई में बहुत अच्छा टाइम है फैमिलीज के लिए, जो जॉइंट फैमिलीज हैं या जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जो वर्किंग पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, या बच्चे हैं जो हमेशा अपने किसी ना किसी काम में या हॉबीज में बिजी रहते हैं, कभी स्विमिंग जाना है, कभी डांसिंग जाना है, या बाहर का ही उनका रूटीन रहता है, इवन मील्स भी वो लोग साथ नहीं लेते, लंच या डिनर.
कुछ भी, या तो स्कूल होता है या कॉलेज होता है, या पूरे टाइम सब बिजी रहते हैं, इवन पेरेंट्स आर वर्किंग। तो ये जो टाइम मिला है आपको, इसको आप पॉजिटिव सेंस में लें। बच्चों को भी आप इन्वॉल्व करें, क्योंकि बच्चे वैसे बिजी रहते हैं अपने नॉर्मल शेड्यूल में, बट अगर अभी वो आपके साथ हैं तो इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू एंड योर चिल्ड्रन टू बॉन्ड विद ईच अदर इन अ स्ट्रॉन्ग वे। एंगेज योर किड्स इन कुकिंग, आप कुकिंग में इन्वॉल्व करो, आप उनको डस्टिंग में इन्वॉल्व करो, आप उनको क्लिनलीनेस में इन्वॉल्व करो, बिकॉज मेड्स का भी प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं हर एक काम हर कोई कर सकता है। बच्चों को भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज बाकी और टाइम वो बहुत बिजी रहते हैं या आप भी बहुत बिजी रहते हैं। तो इट्स अ गुड टाइम, यू यूज दिस अपॉर्चुनिटी जो हमको मिली है, जो मुझे नहीं लगता कभी आगे मिले, या और हम चाहे मिलना उसको। ऐसा टाइम भगवान की दया से ना ही आए आगे तो बेटर है, बट जो अभी टाइम आया है उसके लिए एक पॉजिटिव सोच रखते हुए मैं यही बोलूंगी कि आप बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें, और बच्चे अगर पॉजिटिव रहेंगे, बच्चों को अगर आपने पॉजिटिव रखा तो ऑब्वियसली आप भी पॉजिटिव रहेंगे और पूरे घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा। और बच्चों को इन्वॉल्वमेंट के लिए मैंने आपको बोला ही है कि उनको हर एक काम में इन्वॉल्व करें, ताकि उनमें सेल्फ इंडिपेंडेंसी आए, एंड वो बाद में भी अगर उनको अकेले रहना पड़े तो वो हर तरीके से इंडिपेंडेंट हो। एंड यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करूंगी अबाउट माय मॉम। माय मॉम इज 80+, बट उनको 3-4 महीने पहले, शी इज ऑल्सो अ कोरोना फाइटर, उनको 3-4 महीने पहले कोरोना हुआ था। एंड उनका जो स्पिरिट था, सच अ सैल्यूटेबल स्पिरिट, आई एम टेलिंग यू, वो ही शायद मेरे अंदर भी आया है, जो कि मैंने अपनी मदर को जिस तरीके से कोरोना से फाइट करते हुए देखा, उनको मैंने बिल्कुल भी नेगेटिव होते हुए नहीं देखा, जबकि वो हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेली थी, कोई भी नहीं था उनके पास। हमने अपने पर्सनल अटेंडेंट्स भी रख रखे थे उनके लिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम उनसे वीडियो कॉलिंग पे बात कर सके। और इनिशियल डेज में जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई थी, आई वॉज देयर विद हर, बट उस टाइम मुझे कोरोना नहीं हुआ, उस टाइम मुझे इन्फेक्शन नहीं हुआ। बट मम्मी का जो स्पिरिट था उससे वाकई मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड वो ही स्पिरिट मैंने जब खुद को कोरोना पॉजिटिव आया मेंटेन रखा। एंड बट मेरा स्पिरिट थोड़ा सा डाउन हुआ मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको मुझसे ज्यादा थोड़े हायर सिम्टम्स थे, उनको थ्रोट प्रॉब्लम ज्यादा थी, बट उसको भी नेगेटिव ना लेते हुए मैंने अपना खुद का कोरोना के सिम्टम्स में भूल गई और उनके ज्यादा टेक केयर में मैं लग गई। तो मेरे सिम्टम्स मुझे डल लगने लगे, हालांकि सिम्टम्स थे, बट उनको देखते देखते मुझे अपने सिम्टम्स डल लगने लगे। एंड यहाँ पर मैं एक और चीज बोलूंगी कि जितना हो सके आप अगर आइसोलेशन में हैं, अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं, कीप योरसेल्फ बिजी इन सोशल वर्क। जैसे मैं बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हूँ, और जब मुझे कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी तो उससे 2-3 दिन पहले ही हमने कोविड हेल्पलाइंस खोली थी ऑल ओवर नेशन, अराउंड 30 to 40 कोविड हेल्पलाइंस, जिसमें राजस्थान के अंदर 7 to 8 कोविड हेल्पलाइंस हैं, जिसमें हम लोग सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं एज अ टीम। जो बृजभूमि फाउंडेशन है उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, एंड इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी डेली, वो मैं देख रही थी, उससे मुझे मेरी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगने लग गई थी। मतलब उनका मैं इन्फेक्शन लेवल देख रही थी, उनका ऑक्सीजन लेवल देख रही थी, एंड वो ठीक भी हो रहे थे, क्योंकि हम उनके लिए इतने कंसर्न थे, जो पूरा हमारा टीम थी, और पूरा जो हम उनको हेल्प कर रहे थे, लाइक दैट वाज जस्ट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। आपको हमेशा मैं बोलूंगी यहाँ पर एक कि आपको गिवर वाली पोजीशन पे होना चाहिए, बिकॉज जितना आप देंगे उतना ही आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। पॉजिटिविटी विद लाइक देने का, जब आप दे रहे हैं तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, जो भी आप कर रहे हैं इन रिटर्न यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। जस्ट जो आपको मिल रहा है वो बहुत बड़ी चीज मिल रही है, दैट इज पॉजिटिविटी, देयर ब्लेसिंग्स एंड योर इनर पीस। आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो इनर पीस है, वो स्ट्रांग होता जाएगा, और जैसे जैसे आप स्ट्रांग होके आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, एंड आपका जो कोरोना सिम्टम्स है वो भी डल होंगे, एंड आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब उसको रिकवर कर लिया है। एंड हियर इज अ वेरी नाइस कोट रिलेटेड टू दिस, लाइक वी हील नॉट इन आइसोलेशन बट इन टुगेदरनेस। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो हम लोग
आइसोलेशन में होते हैं प्रैक्टिकली, बट इफ यू कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड विद पीपल, हेल्पिंग पीपल एंड पॉजिटिव लोगों के साथ आप इंटरेक्शन करें, लोगों की हेल्प करें, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली लाइक आप एक टुगेदरनेस में रहेंगे, आपको वो आइसोलेशन लगेगा ही नहीं कि यू आर इन आइसोलेशन, एंड you will just pass your those 14 days in a very comfortable manner. And this is all what I have to say to keep positivity and stay strong during these 14 days of quarantine. Yeah, Monica, thank you. Be positive, stay positive, and spread positivity. Keep yourself busy. That's really true, Nidhi ma'am, because we need to keep ourselves busy at this moment. Yeah, even I believe in the same. So thank you so much for your valuable words and suggestions. So now, moving forward, I would like to ask the question to our one more expert, that is Ms. Varsha. Ms. Varsha, nowadays, during this time, we are having lots and lots and lots of, mental health issues. Maybe it is regarding, how to fight against the disease, or maybe the financial. There are so many things that the people are struggling. So what do you think? What is your suggestion about this mental health? Thank you, Prashanti ji. Good evening, all beautiful ladies, those are here, and audience who are watching this show. Congratulations, Nidhi ma'am, for recovery. And good question is here about mental health. यदि हमें फिजिकली हेल्थी रहना है तो सबसे पहले हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना होगा। मेंटल हेल्थ यानी कि अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इस पैंडेमिक के टाइम पे और यदि किसी की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आती है तो इस टाइम पर हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। मेंटल हेल्थ को आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे और कैसे पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ के लिए आप यदि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, यदि कोविड पॉजिटिव है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपके नेबर्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं और आपके रिलेटिव्स हैं या मेट्स जो आपके घर में आ रहे हैं, तो ये उनके बीच में स्प्रेड ना हो। उनको ध्यान में रखते हुए आपको ये, जब आप दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपका माइंड उसमें बिजी हो जाएगा। और इस पैंडेमिक के टाइम पर सब लोग घर में हैं और सब लोग वर्किंग रहते हैं, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेस में कहीं ना कहीं एंगेज रहते हैं। पर इस टाइम पर जब हम घर पे हैं तो हम काफी स्ट्रेस, डिप्रेशन में होते हैं। तो इस डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों में अपने आप को एंगेज रखना है। जो हमारा माइंड है वो फुली कहीं ना कहीं एंगेज होना चाहिए। यदि आपकी हॉबीज हैं, लाइक आपको ड्राइंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है, स्केचिंग पसंद है, इंटीरियर डिजाइनिंग पसंद है, क्राफ्टिंग आपको करना पसंद है, बुक्स रीडिंग करना पसंद है, आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, सिंगिंग आपकी हॉबीज हैं, तो आप अपने आप को एंगेज रखिए। अभी ऐसी बहुत सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशंस हैं जिन पे आप अभी वर्क कर सकते हैं, उनको रन करना सीख सकते हैं। बहुत सारे वेबिनार्स और इवेंट्स चल रहे हैं जिसे हम घर बैठ के ज्वाइन कर सकते हैं। हम इसमें न्यू नॉलेज भी गेन करेंगे और अपने माइंड को भी बिजी रखेंगे। इस टाइम पर हम डांसिंग, ऐसी फास्ट एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते क्योंकि कोविड पॉजिटिव है, ऑब्वियसली उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस होती है। पर इस टाइम पे आप ऐसी एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, इस टाइप की एक्सरसाइजेस करके अपने आप को एंगेज करेंगे। इससे आपकी मेंटल हेल्थ, जैसे मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन से हमारी मेंटल हेल्थ पे काफी असर होता है, काफी पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर। आप भजन सुन सकते हैं, कोरल सुन सकते हैं, खुद गा सकते हैं इन चीजों को, तो आपको इनर पीस मिलेगा। तो इन चीजों में आप खुद को एंगेज रखिए। मेंटल हेल्थ पर अभी हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। हेल्दी फूड लीजिए, प्लेंटी वाटर लीजिए, वार्म वाटर लीजिए। इससे आपको जो जूसेस है, डिफरेंट काइंड्स, अभी समर का टाइम है, आप जूसेस लेंगे तो आपको बॉडी को एक अच्छा पीस मिलेगा, अच्छा हेल्दी रहेगी आपकी बॉडी। इससे मेंटल भी, आपका जो मेंटल लेवल है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके अलावा आप जो कर सकते हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके डियर और नियर वन हैं, आप उनसे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, वो आपको पॉजिटिव थॉट्स शेयर करेंगे। ये टाइम सोशल डिस्टेंसिंग का है, बट सोशल आइसोलेशन का नहीं है।
हम इस टाइम पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, बट हम सोशली दूसरों के साथ कनेक्टेड रहें। आप उनके साथ जब कांटेक्ट में आएंगे, आप अपने बारे में शेयर करेंगे, आप कैसा फील कर रहे हैं, वो जब आपसे पूछेंगे कि आपने मेडिसिन ली है, आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको सोशल कनेक्टिविटी रखनी है। वी हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस, बट वी हैव टू कनेक्ट विद द पीपल। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा जी, आपने बहुत अच्छी टिप्स दी है और आई एम श्योर आपकी जो टिप्स हैं, जो सजेशंस हैं, वो हमारी ऑडियंस को भी पसंद आएंगे और वो ज़रूर इस लड़ाई को उसी जोश और जुनून के साथ लड़ेंगे। मैम, निधि मैम, आपसे मेरा एक और सवाल है। जैसा कि आपने कहा कि पॉजिटिविटी के साथ हमें लड़ना चाहिए, जो माहौल है, जो पैंडेमिक है, उसमें एक हथियार हमारे सामने आया है वैक्सीनेशन के रूप में, क्योंकि इंडिया ने वैक्सीनेशन लॉन्च किया है, वैक्सीन आ गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों में ये भ्रम है कि नहीं, हमें वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहिए, उसकी वजह से हमें कोई साइड इफेक्ट होंगे। आज भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। तो मैम, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपने वैक्सीनेशन करवाया है और आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? मैम, आप म्यूट पे हैं मैम। सॉरी गाइस। या फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस क्वेश्चन पे ये बोलना चाहूंगी कि आई एम रियली अ प्राउड इंडियन कि इंडिया ने वैक्सीनेशन लॉन्च किया, एंड जो और दूसरे कंट्रीज हैं उसमें वैक्सीनेशन की एक्सेप्टेंस काफी अच्छी आई है। और स्टार्टिंग में इंडियंस, हम लोग खुद ही थोड़े कंफ्यूज थे इस चीज को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर। बट मैं यहाँ पर बोलूंगी कि इस वैक्सीनेशन हमें जरूर लगवाना चाहिए। वैक्सीनेशन इज अ मस्ट फॉर ऑल। जो भी डोजेस हैं, दोनों डोजेस हमें लगाने चाहिए वैक्सीनेशन के। और वैक्सीनेशन के लिए जो भ्रम फैला हुआ था इनिशियल डेज में, ठीक है, इनिशियल डेज में था, बिकॉज इतना फेथ डेवलप नहीं हुआ था लोगों में। लोगों को डर था कि क्या रिजल्ट्स होंगे, कैसा क्या होगा, कैसी हेल्थ रहेगी। बट जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, सबको वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंस पता चल रहा है। एंड वैक्सीनेशन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारे लिए इस कोरोना को कॉन्कर करने के लिए। सो वैक्सीनेशन जो भी, जितने भी लोग हैं, जितने भी एज के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, सबको करवाना चाहिए। एंड यहाँ पर मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगी कि अभी इनिशियली फेथ लेवल कम था, बट अगर हम देखें कि अब जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको भी हम अगर वैक्सीन लगाते हैं तो इनिशियल उसको फर्स्ट 2 डेज उसको प्रॉब्लम रहती है। तो सेम चीज अगर हम कुछ भी फॉरेन बॉडी हमारे अंदर जा रही है, वैक्सीन हमको लग रहा है, तो हमको भी कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं है। वो एक नेचुरल सिम्टम्स है, वो आते हैं, वो इनिशियल 2 दिन रहेंगे या 1 दिन रहेगा, डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, बट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर वैक्सीनेशन। एंड अभी जो वैक्सीनेशन का माहौल है, उसके लिए भी मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सभी से, मे बी रूरल एरिया, विलेजेस, सिटीज, मेट्रोज, कि उन्होंने जो माहौल बना रखा है, अब इतनी अफरा तफरी उन्होंने कर दी है वैक्सीनेशन लगाने के लिए कि वहां पर वो एक सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा आपको ध्यान में रखना है। वैक्सीनेशन सबके लिए है, सबको लगेगा, पूरा सबके लिए ही प्रोटोकॉल है, वो जरूरी है लगाना। बट हम जो अफरा तफरी कर रहे हैं वो ना करें। हम इतनी अफरा तफरी करेंगे सो वहां पे जाके सारे प्रोटोकॉल्स हम लोग भूल जाएंगे। वैक्सीनेशन जो कैबिन्स होते हैं वहां पे हम लोग इतना भीड़ भाड़ कर देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, तो और उल्टा भी हो सकता है हमारे साथ। हम कोरोना के क्योर के लिए वैक्सीन लेने जा रहे हैं, बट हम लोग कोरोना लेकर भी घर में आ सकते हैं। सो इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स फॉर वैक्सीनेशन। जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, मेनली आप एक सिविलाइज सिटीजन की तरह प्लीज बिहेव करें। आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि हम लोग, बिकॉज ये हमारे फायदे के लिए है, बिकॉज इट्स लाइक पेंडेमिक, तो एक से वही कम्युनिटी स्प्रेड है बेसिकली। तो इसको कम्युनिटी लेवल पे ही हमको क्योर करना पड़ेगा, एंड कम्युनिटी लेवल पे ही हमको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो बेटर है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अपना मतलब किसी को हमको बताने की या किसी को गाइड करने की इस चीज के लिए जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। हमको खुद पता है कि हमें हमारे फायदे के लिए या हमारे बेटर फ्यूचर के लिए हमको क्या करना है।
So this is all about vaccination. So both the doses of vaccinations are very, very essential. Each and everyone should go for it, because इसी से हमारी immunity develop होगी, and this will help us to come out from this lockdown period and all these problems which are going worldwide. Thank you so very much. Well said, Nidhi ma'am. So, according to Nidhi ma'am, so when other countries are believing in vaccination and when they are getting vaccinated, so why can't we? On behalf of Winners Creators, we request everyone to go and take the vaccination. That's really good, ma'am. That's really good. Yeah, moving ahead now, I have a question to our one more expert. That is, she is a professional psychologist, and I think Madam can expert better about it. Swati ma'am, nowadays people are very negative and scared about this vaccination. So I would now like to ask you the same question, how people can come out of this fear. Very true and very well said as well, and by our other experts as well. Yes, it was a fear of it earlier, but I can summarize with a small line. Your mind will always believe what you tell it, right? So, as with a small example, I like to tell, like if you wake up in the night while looking to some very bad dream, so you tell yourself, no, it's a dream, and then you go back to your sleep. So the way you respond to it and the way the statement you say to your mind, the mind only understands that thing. Same thing, in the starting, the vaccination has been, presented in a very negative form. So the people was a little bit scared. Nowadays also they are having that fear because somewhere, when somebody is going for a vaccination and they tell to their friends or to their loved ones, we say, oh, take care, fever aega, ye symptom aega, and all that thing. So we automatically giving them the instruction in a very negative form or in a little bit scared form. So when we start doing it in a positive form, like, okay, that's great that now you are a courier, you are a corona warrior. So now you're going for vaccination. So then the person is also getting motivated. Whereas as it's same as it's lying with the plasma donation as well. Many people who are healing and they are not donating the plasma. So that fear we have to handle, and we have to take care with our loved ones what statement we are giving to them. So as I always say that, that difficult roads led to a beautiful destination. So if we are going for a vaccination, so it will give us a beautiful world altogether because we can fight from the corona as well. So thanks, Ms. Shanti. थैंक यू सो मच श्वेता मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें पॉजिटिव होने से डर लग रहा है, बट आई एम श्योर कि ये जो हम पॉजिटिव हो रहे हैं, ये कोविड का पॉजिटिव हमारी ज़िंदगी से बहुत जल्दी चला जाएगा और बाकी सारी सकारात्मकता, बाकी सारी पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में फिर से आ जाएगी। निधि मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपकी पूरी ये कोविड की आपने जर्नी हमें बताई, हमारे बहुत से ऑडियंस हैं जो हमसे कनेक्टेड हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी कोविड से जूझ रहे हैं, तो आपका सभी को क्या मैसेज होगा, क्या सजेशंस होंगे, प्लीज हमें बताइए। या थैंक यू मोनिका। मेरा एक सिंपल सा सजेशन है लोगों को, जिसको मैं एक कोट के थ्रू बोलना चाहूंगी कि कोरोना को लाइक ये जिंदगी की पहली ऐसी रेस है, ये जिंदगी की पहली ऐसी रेस है जिसमें रुकने वाला जीतेगा। सो इट्स रियली वेरी सिंपल कि हमें जो भी हमारी भाग दौड़ है, जो भी हमारा दिमाग जहाँ भाग रहा है, या हमें जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो हमें फॉलो करने हैं और घर पर ही रहना है। अभी अपनी रेस को आप कम कर दीजिए, बिल्कुल दिमाग से सारे चिंताएं मिटा दीजिए। अभी आपका फोकस पूरा और पूरा आपके हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए और अपने नियर वंस एंड डियर वंस की हेल्थ पे फोकस होना चाहिए। तो बस चैरिटी बिगिंस एट होम, यू नो। तो एक एक फैमिली इस पे फोकस करेगी तो पूरा नेशन हमारा पूरा इस कोरोना से मैं बोलूंगी पूरा क्योर हो जाएगा नेशन। तो एक एक घर में ये चीज रिपीटेडली मैं बोलूंगी
कि ये जिंदगी की पहली ऐसी रेस है जिसमें रुकने वाला जीतेगा। तो प्लीज थोड़ा सा आप अपनी रेस पर ब्रेक लगाइए और अपने जो ये न्यू नॉर्मल है इसको एक पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करिए। न्यू नॉर्मल वी ऑल नो वेरी वेल, नीड नॉट टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। न्यू नॉर्मल को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी हमारा देश जो है इस कोरोना को हरा पाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you, Nidhi ma'am. Maintaining inner peace is very important. At the same time, we should not rush. Patience is much more important. Such a good message. Thank you, Nidhi ma'am. So now moving ahead, now I would like to ask the question to Anita ma'am. Anita ma'am, so what's your overall message? Still now many people are struggling with this COVID. So what is your overall message for them? Thank you, Prashanti, once again. Now, before saying, before letting the message out or before telling the mantra, let me create some positive vibrations here on this platform, right? By saying a beautiful quote: a healthy mind breeds a healthy body and vice versa. Obviously, agar mind healthy rahega, तो body automatically healthy रहेगा and vice versa. और कोई कोरोना आपके नजदीक नहीं आ सकता. So first of all, have a very, very healthy mind. Now my mantra to the audience and to all of you is, change your mindset. Believe in yourself. Be positive and enjoy life. खुश रहिए and अच्छे thoughts सोचिए. Your mind will believe everything you tell it. Feed it faith, feed it truth, and feed it with love. That is my mantra. Thank you. थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मन यदि स्वस्थ है तो निश्चित रूप से शरीर भी स्वस्थ होगा, और शायद आपकी यही पॉजिटिविटी है जो आपके अंदर और बाहर भी झलकती है। थैंक यू सो मच मैम। हमारी जो अगली एक्सपर्ट हैं वर्षा मैम, मैम आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए, बहुत अच्छे सजेशंस दिए। हमारी जो ऑडियंस है उनको लास्ट में आप कोविड के लिए क्या कहना चाहेंगी? क्या आपका एक मैसेज होगा ताकि उनको एक हौसला मिले, जज्बा मिले और वो इस लड़ाई को लड़ पाए? तो मैम आपका मैसेज क्या है? थैंक यू मोनिका जी। मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि हमारे लाइफ में बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में आएंगे, बट हर सर्कमस्टेंसेस में हमें हमेशा खुश रहना है, हैप्पी रहना है और हैप्पीनेस को स्प्रेड करना है। जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, पीपल हु आर अराउंड अस, वी मस्ट स्प्रेड हैप्पीनेस अमंग देम। Always try to live happy and spread happiness. Always keep a smile on your face in all circumstances of life. As we know that हर रात के बाद सुबह होती है, हर हार के बाद जीत होती है, हर रात के बाद सुबह होती है, हर हार के बाद जीत होती है। उसी तरह इस बुरे वक्त के बाद भी हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा वक्त आएगा, तो हमें उस अच्छे वक्त के लिए तैयार होना है और इस टाइम पर भी हमें खुश रहना है और खुशियां बिखेरना है। सो ट्राई टू लिव हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। थैंक यू। Happiness, 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 and happiness. Happiness is the only one mantra what Varsha madam has suggested to us. Thank you so much. Nowadays, people have forgot about the happiness. I hope that is really true. So we need to be happy and we have to spread the happiness. Thank you, Varsha ma'am. Thank you so much. So now moving ahead, now I would like to ask the same question to our one more expert, that is Swati ma'am. Swati ma'am, what is your mantra? What is your mantra for all of us and also for the COVID fighters? Before I say about the mantra, as Miss Monica really rightly said that, positive, we are really afraid of to get that corona positive, and we wanted that negativity to be coming in regarding the corona. But yes, as the positive thoughts, yes, is there. But with that positive thoughts, it's not only enough with that positive thoughts. We need to have a positive feelings with the positive action. As we with Miss Nidhi ma'am, with Nidhi said that she was doing a lot of social working and the other things. So what actions we are taking it?
that is really important. What feelings we are getting into it, that is really important. So with that positive thought, we really want to administer our positive feelings and with the positive actions as well, because that only that positivity we want it in our mind, not in the corona. So thanks, Ms. Prashanti, for this question. Thanks a lot. थैंक यू सो मच श्वेता मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें एक्शन लेना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारा जो पूरा प्रोग्राम हुआ कोविड का, उसकी जो हमारी होस्ट मेन जो हेड हैं गुलनाज मैम, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो गुलनाज मैम है वो भी कोविड के बारे में तो अपने विचार रखें ही, हमारी जो ऑडियंस है उनको कुछ सजेशन भी दें। साथ ही ये जो पूरा प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया था, तो क्योंकि मैम आपके ही मार्गदर्शन में सारा प्रोग्राम हुआ था, तो मैम आप क्या कहना चाहेंगी, प्लीज आपका भी मैसेज हमें दीजिए। Good evening. First of all, good evening to everyone. Good evening. And I'm really proud of Miss Nidhi ma'am. Really, you are a warrior. You are a warrior of this coronavirus. आपने एक मिसाल छोड़ दी है। सभी कोरोना जो पेशेंट पॉजिटिव आए हैं उनके लिए आपने एक मिसाल छोड़ दी है। और आपकी जो एक बात आपने कही कि आपको ये कैसे सिम्टम्स पता चले, ये कैसे आपको आए, बिकॉज यू हैव सेड दैट कि व्हेन द रेन, जब बारिश हो रही थी तो आप लोग ने भीगे। तो मैं ये ऑडियंस से कहना चाहूंगी, जो भी देख रहे हैं, अभी बारिश का मौसम है, कहीं कहीं सिटीज में बारिश हो रही है, तो प्लीज आप ना बाहर जाए, उस चीज से आप सेव रहे, क्योंकि अगर आप भीगोगे तो आप जरूर आप जो है पॉजिटिव आओगे, क्योंकि बारिश में भीगने से ही आपको सारे सिम्टम्स जो आते हैं उसी से आते हैं, लाइक खांसी होना, सर्दी होना, तो वो एक सिम्टम्स है कोरोना के, व्हाट निधि मैम हैज सेड। एंड उसके बाद उन्होंने और एक बताई है कि डर से हमें कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि हमें जो है मेंटली प्रिपेयर होना है। वेरी वेल सेड। और मुश्किलों से सामना, क्योंकि फाइनेंशियली जो सारे सब लोगों को स्ट्रेस है, सब लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रेस है, और उसके बाद बिजनेस का स्ट्रेस है कि हम, लेकिन दिस इज जस्ट ए टेम्पररी, दिस इज नॉट ए परमानेंट, इट्स ए टेम्पररी। अब आई है तो चले भी जाएगी। बस एक छोटा सा एक कहना चाहूंगी और कि अनीता मैम जो हमारे यहाँ के एक्सपर्ट है, शी सेड कि हमें जो है सोशल डिस्टेंस रखना है और हाइजेनिक जो है आपके जो प्लेस में है इतना क्लीन रखना है कि वो हाइजीन रहे, उससे कोई भी आपको मास्क लगाए, सैनिटाइजर करे, जैसे एंट्रेंस डोर में जैसे उन्होंने कहा कि सैनिटाइजर रखे वगैरह। एंड और हमारे और एक एक्सपर्ट, वेरी वेल एक्सपर्ट, वर्षा मैम, शी आल्सो सेड दिस पॉइंट दैट हमें फिजिकली हेल्थी की ज्यादा हमें मेंटली हेल्थ की जरूरत है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो भी हमारे ऑडियंस देख रहे हैं और जो भी हमारे यहाँ पर फेसबुक से जो लाइव चल रहे हैं, हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये जो सीरीज लाई है, हमारा मकसद सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाना है, आदमियों को डराना नहीं है। यहाँ से हम आप लोगों को हौसला देना चाहते हैं, ठीक है, उम्मीद दिलाना चाहते हैं। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले हम लोग बोलते थे कि नेगेटिव सोचो मत, लेकिन अब हमारा सिचुएशन ऐसा आ गया कि अब हमें नेगेटिव यानी पॉजिटिव को नेगेटिव में लाना जरूरी हो गया है। तो बस यही हमारा हौसला है। और हमारी जो हम एवरी सैटरडे नाइट एट 8 PM हमारी हर एक सीरीज आएंगी, और जहां पे हम आप लोगों के लिए कोरोना जो पॉजिटिव आए हैं उनको लेके आएंगे, एक्सपर्ट्स को लेके सॉरी एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे, जो आपसे वो अपनी जर्नी शेयर करेंगे। आई एम सो सॉरी, क्योंकि कोरोना ने हमें ये साबित किया है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं ना, जैसे कि हमारे सराउंडेड में थे बहुत सारे लोग थे, हम ऑफिस जाते थे, आई एम सो सॉरी, आई एम हर्टिंग, हमारे बहुत सारे लोग से थे, तो हमारे जीवन में बहुत सारे
चीजें हम जुड़े हुए थे बहुत सारी चीजों से, जैसे हम जिम जाना, ऑफिस जाना, काम करना, सोसाइटी के बीच में रहना। लेकिन अभी ऐसे हो गया कि हम एक एक चीज से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि हम एक एक चीज के आप पॉज कर गए हैं, पॉज हो गए हैं। और यही एक आपका है कि आप अपने फैमिली के साथ है, तो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करिए। मेंटली आप फिजिकली नहीं कर सकते, बट मेंटली उन्हें पॉजिटिव रख सकते हैं। इस डर से उन्हें बाहर निकालिए। जो भी उनके दिमाग में चल रहा है नेगेटिविटी की, उसको हुआ है मुझे भी होगा, नहीं, जरूरी नहीं कि हर चीज को हो। और जैसे निधि मैम ने वैक्सीन के बारे में बताया, आप सभी को वैक्सीन लीजिए, क्योंकि वैक्सीन ही एक जरिया है जो हम सेफ रह सकते हैं। ये मत सोचिए, आप जब वैक्सीन लेते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग रख के ये करिए कि हम जो है कामयाब होंगे, हमारी इंडिया कामयाब होगी जिस तरह और कंट्री कामयाब हो रही है। और इसी तरह मैं यहाँ पर थैंक्स कहना चाहूंगी हमारे विनर्स क्रिएटर को, जो यहाँ के फाउंडर है योगी सर, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर हम ऐसी चीजों को ला सके। और आपका साथ ऑडियंस, जाहिर सी बात है आपका भी साथ हमारे साथ रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही। और कहते भी है ना कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों ना कितनी ही बड़ी हो, क्यों ना कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। तो हमारी ये कोशिश से ये जो कोरोना रूपी चट्टान है, निश्चित रूप से एक दिन जरूर हमारी राह से हट जाएगी और वापस हमारे जो दिन है, जो पॉजिटिविटी है, वो वापस लौटेगी। यही हमारा प्रयास था दोस्तों, कि हम इस कोरोना की जंग में आपको हौसला दें, हिम्मत दें। और यही हमारी कोशिश थी कि हम आपको कुछ ऐसे सजेशंस दें, साथ में सकारात्मकता दें और हिम्मत दें, ताकि आपको लगे कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you, Monica ma'am. Thank you so much for being my co-host. And also I would like to thank the Corona winner, that is Nidhi ma'am. Thank you so much for joining us. I would also like to thank all our experts on the show who gave such a meaningful and a motivational message. I hope all our audience would have got motivated and will start thinking positively. I would also like to thank Gulnaz ma'am, who is our program head. Thank you so much.